بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو غور سے دیکھیے گا کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم وہ باتیں بتائیں گے کہ کس طرح حمزہ شہباز پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہ سکتے ہیں اور کتنی سیٹیں چاہیے ہوں گی پرویز الہی صاحب کو سی ایم بننے کے لیے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ پنجاب کے سنگھاسن پر ٹکے رہنے کے لیے حمزہ شہباز کو کم از کم 20 میں سے 9 سیٹیں جیتنا لازمی ہو گئی ہیں، ورنہ انہیں دوبارہ اپوزیشن لیڈر کی کرسی پر آنا پڑ جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ نوبت ملک میں عام انتخابات تک چلی جائے۔ پی ٹی آئی کو لاہور کے تخت پر پرویز الہی کو بٹھانے کے لیے کم از کم 15 سیٹوں پر کامیابی لازمی حاصل کرنا پڑے گی۔ دونوں اطراف کے لیے ٹاسک بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ ویسے یہ بھی اپنی نوعیت کا پہلا ضمنی الیکشن ہے جس کی حیثیت عام انتخاب جیسی بن گئی ہے۔ عام انتخابات میں جو پارٹی جیتی ہے وہ حکومت بناتی ہے۔ اب ان میں 20 حلقوں میں سے ایسی ہی صورتحال ہے کہ جو پارٹی جیتے گی وہی تخت لاہور کی وارث کہلائے گی۔ گویا تخت لاہور اب ان 20 ضمنی سیٹوں کا محتاج بن گیا ہے۔ ضمنی الیکشن کے لیے عام تاثر تو یہی تھا کہ جس کی حکومت ہوتی ہے وہی الیکشن جیت جاتا ہے۔ ووٹر ٹرن آؤٹ بھی زیادہ نہیں رہتا کہ لوگوں کی دلچسپی بھی کم ہی ہوتی ہے کہ اس سے ایک آدھ سیٹ سے کیا فرق پڑے گا۔ لوگ عموماً یہ سوچتے ہیں کہ ایک آدھ الیکشن ہے، حکومت بن چکی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے لوگوں کی اس سے دلچسپی بھی ایسے الیکشنوں میں کم ہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ روایت اور تاثر بھی پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران ہی زائل ہو گیا کہ ان کی ملک اور اس صوبے میں حکومت ہوتے ہوئے بھی ضمنی الیکشن میں ہار ہی حصے میں آئی۔ پنجاب میں 12 یا 14 جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے 3 سالوں کے دوران، ان میں سے صرف ایک سیالکوٹ کی صوبائی نشست پی ٹی آئی کے حصے میں آئی، باقی سارے انتخابات میں فتح نون لیگ کی ہوئی۔ پی ٹی آئی نے حکومت کا استعمال کرنے کی کوشش بھی کی تو ڈسکا میں وہ شرمندگی ہوئی کہ ڈسکا الیکشن دھاندلی کا ایک استعارہ ہی بن گیا۔ ضمنی انتخابات 17 جولائی کو ہوں گے، ان میں اب 10-12 دن ہی باقی بچے ہیں۔ اس دوران عید بھی آئے گی۔ ان انتخابات کے لیے انتخابی مہم زوروں پر ہے۔ پی ٹی آئی کے امیدوار اپنے طور پر مہم چلا رہے ہیں کیونکہ عمران خان صرف 1 دن کے لیے لاہور آئے تھے اور 4 گھنٹوں میں 4 حلقوں میں حاضری دے کر واپس گلی اللہ چلے گئے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے مرکزی قیادت میں شاہ محمود قریشی جو وہ خود مصروف ہیں کیونکہ ان کا اپنا بیٹا ملتان سے الیکشن لڑ رہا ہے۔ محمود رشید لاہور میں اس لیے مصروف ہیں کہ انہوں نے اپنے داماد کے لیے ٹکٹ حاصل کر لیا ہے، جبکہ اعجاز چودھری ایک بار پھر اپنے بیٹے کو لانچ کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں کہ وہ ٹکٹ نہیں حاصل کرے۔ جس حلقے میں وہ ٹکٹ کے خواہش مند تھے، اس حلقے کی صورتحال بھی بڑی دلچسپ رہی۔ اس حلقے کے میں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سٹار اظہر مشوانی ٹکٹ کے خواہش مند تھے۔ انہوں نے کاغذات بھی جمع کروانے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ صرف ایک کارکن تھے، اور کارکن کی پہلے کب چلی ہے کسی بھی پارٹی میں جو اب چلتی۔ عمران خان صاحب کو سوشل میڈیا پوڈ کاسٹ بنی تھی، اس کے لیے اظہر مشوانی یاد تو رہے لیکن ٹکٹ مانگنے پر وہ انہیں بھول گئے۔ اس حلقے میں انہوں نے ایک اور کارکن عاطف چودھری کا انتخاب کیا لیکن 4 دن بعد ہی ایک پیسے والی جو عموماً الیکشن میں ہوتا ہے وہ میدان میں پارٹی آ گئی اور شبیر گجر یہ ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ ان کے مقابلے میں ترین گروپ کے نذیر چوہان میدان میں ہیں اور یہ وہی حلقہ ہے یہاں نون لیگ کی شائستہ پرویز بھی 8 ماہ پہلے ضمنی الیکشن میں کامیاب حاصل کر چکی ہیں۔ پنجاب کے باقی حلقوں میں عمران خان نے 16 جگہوں پہ جا کر انتخابی مہم چلانے کا اعلان کیا ہے۔ اب ان کی وہاں جا کر الیکشن مہم چلانا کتنا اثر انداز ہوگا جیت کے لیے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ اس سے پہلے عمران خان آن گراؤنڈ جا کر مہم چلانے کے حق میں نہیں رہے۔ عمران خان ویسے بھی ان ضمنی الیکشن میں تماشا ہی دیکھ رہے ہیں کہ جیت کی صورت میں بھی پی ٹی کے ہاتھ تو کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ وزیر اعلیٰ اگر بنے بھی تو پرویز الہی
ही बनेंगे। जिनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है वो उनके इत्तेहादी हैं और उनका ताल्लुक काफ लीग से है। यूं पीटीआई के हाथ कुछ नहीं आएगा। अब बात करते हैं नून लीग किस तरह इस इंतखाबी मुहिम को चला रही है। तो नून लीग की तरफ से मरियम नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के इंचार्ज हैं। उन्होंने गुजरे 3-4 दिनों में लाहौर के 3 हलकों में जलसे किए। कल या परसों शायद उन्होंने लाहौर के इलाके वलेंशिया में जलसा किया। यहाँ तरीन ग्रुप के ओन चौधरी के भाई अमीन चौधरी अब नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले में पीटीआई के मलिक ज़हीर अब्बास खोखर हैं जो आम इंतखाबात हार गए थे, तो इनको बैतुल माल का एमडी लगा दिया था ज़हीर अब्बास खोखर को। मरियम नवाज शरीफ के जलसों से फ़र्क पड़ेगा या नहीं ये भी आने वाला वक्त बताएगा। नून लीग के लिए भी हालात मुश्किल ज़रूर हैं लेकिन जीत नामुमकिन भी नहीं है। जो इस वक्त मुल्क के माशी हालात हैं और महंगाई की सूरत हाल है, इसमें मुस्लिम लीग नून पर एक सवालिया निशान भी होगा और इलेक्शन लड़ना और जीत जाना काफ़ी मुश्किल टास्क होगा। हाँ, एक सूरत है जो मरियम नवाज शरीफ कर रही हैं कि इन हालात का दफा करने की बजाय आवाम को सच बताया जाए कि हालात यहाँ तक क्यों पहुँचे और किसकी वजह से पहुँचे। अगर लोग इस दलील को कबूल कर लेंगे तो नून लीग जीत भी सकती है। नून लीग के लिए इन इंतखाबात में 2 बड़े चैलेंज हैं। उनमें इमरान खान का साजिशी बयानिया कोई चैलेंज नहीं है, जैसे कि पीटीआई का ख्याल है कि इमरान खान का बयानिया कोई बहुत ज़्यादा मकबूल हो गया है और लोग अब सिर्फ अमरीकी साजिशी बयाने को ही वोट देने के लिए लाइन में लग जाएंगे। ये बयानिया इसलिए भी कामयाबी की ज़मानत नहीं है क्योंकि अभी 2 हफ्ते पहले सिंध में बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, इसमें पीटीआई 4थे नंबर पर रही है। नून लीग के 2 बड़े चैलेंज हैं। पहला चैलेंज ये कि इन इलेक्शन में नून लीग का मुकाबला नून लीग का अपने कारकुनों और वोटर से ही है कि उनके सामने उम्मीदवार नून लीग का टिकट लिए खड़ा है जिसके खिलाफ उन्होंने 3 साल पहले वोट डाला था। वो आज़ाद अरकान हो या पीटीआई के टिकट पर जीतने वाले नून लीग के लिए तो सब उनके खिलाफ ही थे। अब वो मुनहरफ हुए तो नून लीग ने उनको मजबूरी में अपने टिकट दे दिए। गोया इन इंतखाबात में 10 ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो 2018 में आज़ाद हैसियत में जीतकर पीटीआई में शामिल हो गए थे। अब वो नून लीग के उम्मीदवार हैं। इस मसले पर कुछ हलकों में नून लीग के वोटर और सपोर्टर और सबक टिकट होल्डर्स में कुछ बगावत भी सामने आ रही है। इनमें जंग लोधरा के हलके शामिल हैं। जंग में नून लीग के सबक टिकट होल्डर इफ्तिखार बलोच ने नाराज होकर आज़ाद लड़ने का फैसला किया। वो कितना नुकसान पहुंचाते हैं ये देखना पड़ेगा, लेकिन इनके मद्दे मुकाबल फैसल हयात जब्बूवाना 18 में आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीतकर कामयाब हुए और वो पीटीआई में शामिल हो गए। दूसरा हल्का लोधरा का है। यहाँ पीटीआई ने नून लीग के नाराज उम्मीदवार आमिर इकबाल शाह को टिकट दे दिया है। आमिर इकबाल के वालिद ने नून लीग के टिकट पर इससे पहले जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन को ज़मीनी इंतखाब में शिकस्त दी थी। वो टिकट के उम्मीदवार थे लेकिन न मिलने पर पीटीआई से जा मिले। ऐसी सूरत हाल एक हल्के में पीटीआई की भी है। साहिवाल के हल्के में पीपी 202 में पीटीआई के आदिल सईद गुज्जर ने टिकट न दिए जाने पर आज़ाद हैसियत में लड़ने का ऐलान किया है। नून लीग के लिए दूसरा बड़ा चैलेंज जो हकीकी चैलेंज है वो है महंगाई का चैलेंज। यही इलेक्शन अगर पीटीआई के दौरे हुकूमत में होते तो उन्हें इस महंगाई का नुकसान होता जैसा कि पहले ज़िमनी इलेक्शन में हुआ था। अब यह नुकसान नून लीग को हो सकता है अगर नून लीग के उम्मीदवार अपने ज़ाती वोट बैंक को काबू रखने में कामयाब हो जाते हैं और आम वोटर्स को भी ये यकीन दिलाने में कामयाब होते हैं और कि महंगाई के ज़िम्मेदार वो नहीं बल्कि IMF से मुआहिदा करने वाली साबिक़ इमरान सरकार है और वोटर ये दलील कबूल करते हैं तो हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं। बहरहाल तजियाकार समझ रहे हैं कि 20 में से 7 सीटें ऐसी हैं जिन पर नून लीग इंतहाई मजबूत पोजीशन में है और 4 ऐसी हैं जिन पर पीटीआई की जीत पक्की है। बाकी 9 सीटें ऐसी हैं जिन पर जीत के लिए काफ़ी मेहनत दरकार है। एक दिलचस्प हकीकत यह है कि 20 में से सिर्फ 6 सीटें ऐसी हैं जिनके MNAs का ताल्लुक नून लीग से है। बाकी 14 हलकों में MNA पीटीआई के हैं। इन 6 में से 4 हल्के लाहौर के और 1 शेखुपुरा का है।
लाहौर में शाइस्ता परवेज़ मलिक, अयाज सादक, मुबशर इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक के हलकों में सूबाई इलेक्शन हो रहे हैं और शेखुपुरा में मियाँ जावेद लतीफ़ के हलके में ये इलेक्शन हो रहे हैं। इसके अलावा फैसलाबाद में अजमल चीमा का हलका है, यहाँ MNA आसम नसीर हैं जो हैं तो PTI के लेकिन MNA लेकिन अब नून लीग में शामिल हो चुके हैं और अगला इलेक्शन नून लीग से ही लड़ेंगे और वो इस्तीफ़ा न देने वालों में शामिल हैं। इस तरह मुजफ्फरगढ़ से बासित सुल्तान बुखारी भी हैं जो PTI के MNA हैं लेकिन उनकी अहलिया सूबाई असम्बली का इलेक्शन नून लीग के टिकट पर लड़ रही हैं। मैं अपनी कोई पेशीन गोई तो नहीं कर सका लेकिन इतना तज़िया ज़रूर दे रहा हूँ कि हमजा शहबाज ही पंजाब के संगासन पर विराजमान रहेंगे। ये इम्कान गालिब है, बाकी अल्लाह जानता है कोई इस मुल्क में कोई भी मुजज़ा हो सकता है। अब तक की ये सूरत हाल जिस पर मैंने ये अपनी पेशीन गोई की कि हमजा शहबाज ही CM बनेंगे, ये मेरा तज़िया है, कोई ख़बर नहीं है। बाकी सब गैब का इल्म अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन जो अभी तक की सूरत हाल सियासी हमने देखी है उसमें कभी इम्कान ये है जो भी CM बने अल्लाह ताला उसको लिए पंजाब के लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर करे, अवाम के लिए बेहतर बनाए। आप सबसे आज के लिए इतना ही। आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और फेसबुक पर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।